Hello students, this is Chandana and I welcome you to the class of business studies. In this class, we will be learning our next topic, and that is nature of management. We will be learning about nature of management. What is the nature of management? Management is science, art or profession. इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है या प्रोफेशन है. डिफरेंट ऑथर्स का डिफरेंट कहना है. कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि मैनेजमेंट साइंस है, कुछ ऑथर्स का ये मानना है कि मैनेजमेंट आर्ट है, एंड कुछ ऑथर्स ये कहते हैं कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है. बट एक्चुअली क्या है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस टॉपिक. So first we will be seeing whether management is science or not. Management as science. Now for that we will be understanding the characteristics of science, and then we will be comparing it with management. पहले हम साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, फिर उसको मैनेजमेंट से कंपेयर करेंगे. अगर मैच कर जाती है तो दैट मीन्स मैनेजमेंट इज साइंस, बट इफ इट डजंट मैचेस then we say that management is not science. Okay students? Okay. Now we'll see the characteristics of science. Now it is said that science is a systematic body of knowledge. Science is a systematic body of knowledge. Why it is a systematic body of knowledge? Because science has its own theories, concepts and principles. साइंस की थ्योरीज हैं, कंसेप्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं. लाइक क्लास 1 से लेके 10 तक आपने सबने साइंस पढ़ी है. अब उन बुक्स में क्या था? कुछ थ्योरीज पढ़ी थी साइंस की, कुछ कंसेप्ट्स पढ़े थे, कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ. ये सब क्या था? कुछ ना कुछ कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज थी. Therefore, we say that science is a systematic body of knowledge, because कोई ना कोई आपने स्टडी मटेरियल जरूर पढ़ा है, थ्योरीज पढ़ी हैं, कंसेप्ट्स पढ़े हैं. Our second feature is that science principles are based on observation and experimentation. Now, these scientists who all have made these concepts, principles, क्या ये साइंस के जो प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए हैं, क्या बस रातों रात कोई ड्रीम आई और उन्होंने बना दिए? नहीं. दे हैव डन डीप ऑब्जर्वेशन एंड दे हैव डन अगेन एंड अगेन, दे हैव डन एक्सपेरिमेंटेशंस, एंड देन दे हैव फॉर्मुलेटेड न्यू कंसेप्ट्स ऑफ साइंस, न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ साइंस. ऐसे रातों रात कुछ नहीं हुआ. दे हैव डन लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस and experimentations. So these principles are based on experimentations and observations. Coming to the third one, science principles have universal validity. Universal validity means they give you the same result. In a particular condition they give you a same result. Science के जितने भी principles हैं same result देते हैं. Like for example, you have this gravitational force. I think सबको पता है gravitational force क्या होता है. Like suppose I jump here. Now if I jump here, I'll not stay in the air. I'll come down only. Why will I come down? Because of gravitational force. कोई ऐसा force है अर्थ के नीचे जो मुझे नीचे ही pull करेगा. If suppose I go in the field and there I jump, then also it will happen the same. मैं ऊपर jump करूँगी, still I'll come down only. Why? Because the gravitational force will pull me down. Or suppose if I jump from the mountain, still I'll go down only, because that force will pull me down. That means the gravitational force or scientific principles give you the same result. I hope these characteristics of science are clear to you. Now we'll see whether these characteristics are present in management or not. If they are present,
then what we'll say? We'll say that management is science. If these characteristics are not there in management, we'll say that management is not science. Okay, students? Now, first characteristic. Management is a systematic body of knowledge. Management is a systematic body of knowledge. Why? Because it has its own theories, concepts and principles. क्या मैनेजमेंट की थ्योरीज, कंसेप्ट, प्रिंसिपल्स होते हैं? हाँ, होते हैं. आप जिस बुक से पढ़ रहे हो या आपका जो कोर्स है उसमें 1 to 8 चैप्टर सब किस से रिलेटेड है? मैनेजमेंट से रिलेटेड है. दैट मीन्स कुछ ना कुछ थ्योरी तो जरूर पढ़ोगे, कुछ ना कुछ कंसेप्ट और प्रिंसिपल्स तो जरूर पढ़ने में आएंगे. इनफैक्ट सेकेंड चैप्टर तो पूरा प्रिंसिपल से रिलेटेड है. सो वी कैन से दैट management is a systematic body of knowledge. Why? Because it has its own theories, concepts and principles. Now we'll see the second characteristic is there or not. First characteristic to समझ में आ गया कि yes, it is there in management. Second characteristic is management principles are based on observation and experimentations. मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं वो बहुत ऑब्जर्व करके बार बार एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं. नाउ व्हेन यू डू द सेकेंड चैप्टर इज फुल ऑफ प्रिंसिपल्स. द प्रिंसिपल्स गिवन बाय हेनरी फ्योल, द प्रिंसिपल्स गिवन बाय F.W. टेलर. इनके बारे में आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे. F.W. टेलर और जो हेनरी फ्योल हैं, क्या उन्होंने प्रिंसिपल्स ऐसे बना दिए होंगे? नहीं. दे मस्ट हैव डन लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. उन्होंने भी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में एक्सपेरिमेंट्स कर करके देखा होगा और फिर ही अपने प्रिंसिपल्स फॉर्मुलेट करे होंगे. दैट मीन्स दिस कैरेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो देयर इन मैनेजमेंट. जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ऑब्जर्व करके बनाए गए होंगे और एक्सपेरिमेंट्स करके. I hope students this much is clear. Now we'll see whether this characteristic is there or not. ये तो समझ में आ गया कि these two characteristics are there in management. Now we'll see whether this third one is there or not. Third one क्या बोलता था कि it will give you the same result. Can management principles give you same result? क्या management same result दे सकता है जैसे साइंस देता है? नो, इट कैन नॉट गिव यू द सेम रिजल्ट. द रीजन इज दैट इन मैनेजमेंट वी डील विद द पीपल. पीपल आर द वंस हु डू वर्क फॉर यू. बट क्या आपको लगता है कि हर बार इंसान एक जैसा काम करता है? हर एक सिचुएशन में क्या एक जैसा काम करता है? क्या एक ही रिजल्ट आता है? नहीं. वाई? बिकॉज बिहेवियर ऑफ पीपल आर डिफरेंट. कभी वही पर्सन बहुत अच्छा करता है, कभी वही पर्सन अच्छा नहीं करता है. बिकॉज इन मैनेजमेंट वी हैव टू डील विद द पीपल, सो वी डू नॉट गेट द सेम रिजल्ट. इसीलिए हमें वही सेम रिजल्ट नहीं मिलता है. कभी तो अच्छा, कभी तो बुरा. क्यों? बिकॉज वी हैव टू डील विद द पीपल इन मैनेजमेंट. क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट में काम कौन करेगा? लोग ही तो काम करेंगे. So this third characteristic is not there in management. So can you say that management is science? No, management is not science. It is actually inexact science. Inexact. पूरी तरह science नहीं है. We say that it is impure science. Impure science. That means पूरी तरह साइंस नहीं है. क्यों पूरी तरह साइंस नहीं है? Because the third characteristic doesn't matches. Okay, but we can call it as social science. हम उसे social science कह सकते हैं. मैनेजमेंट हम उसे सोशल साइंस क्यों कह सकते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट में हम लोगों से डील करते हैं. सोशल वर्ड सोसाइटी से आया क्योंकि हम मैनेजमेंट में लोगों से डील करते हैं, क्योंकि लोग ही हमारे लिए काम करते हैं.
So we say that it is a social science. I hope students you must have understood this. I'll just repeat it once again. Management is a systematized body of knowledge. Yes, we agree because it has its own theories, concepts and principles. मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं जो आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ोगे, ऑब्वियसली वो कैसे बनाए गए होंगे? ऑब्जर्वेशंस के थ्रू और एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू. दैट मीन्स ये दो कैरेक्टरिस्टिक तो हैं. थर्ड वन क्या था? यूनिवर्सल वैलिडिटी. दैट मीन्स इट विल गिव यू द सेम रिजल्ट. क्या आपको लगता है सेम रिजल्ट मैनेजमेंट देगा? नहीं देगा. क्यों? क्योंकि काम करने वाले कौन है? लोग हैं, पीपल हैं. क्या उनका बिहेवियर सेम रहता है? नहीं रहता है. क्या वो रिजल्ट सेम दे सकते हैं? एग्जैक्टली सेम नहीं. कभी तो अच्छा हो सकता है, कभी बुरा भी हो सकता है. दैट मीन्स इट डजंट गिव्स यू द सेम रिजल्ट. सो दिस कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट देयर. सो वी से दैट इट इज इनएग्जैक्ट. पूरी तरह एग्जैक्ट नहीं है और पूरी तरह प्योर साइंस नहीं है. I hope students you must have understood. Now we will be seeing whether management is an art or not. Whether all the characteristics of art are present in management or not. Now for understanding that, first we need to understand the characteristics of art. Art की characteristics जानना जरूरी है. अगर all characteristics of art is there in management, अगर सारी characteristics art की management में है, so what we'll say? We'll say that yes, management is an art. But if all the characteristics of art are not there in management, we'll say that management is not an art. चलिए start करते हैं art की characteristics से. Art. पहले ये जानना जरूरी है ये art का क्या मतलब है. Art is itself a subject. Subject जैसे you have this fine arts, music हो गया, dance हो गया, ये सब किस में आता है? Art subject में आता है. First characteristic is that art is a systematic body of knowledge. Why are we saying that it is a systematic body of knowledge? Because art has its own theories, concepts and principles. अब जो लोग फाइन आर्ट्स पढ़ रहे होंगे उन्हें ये पता है कि उन्हें बहुत सारे कंसेप्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, बहुत सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ती है. ऐसा नहीं है कि जो फाइन आर्ट्स वाले उन्हें सिर्फ पेंटिंग और ड्राइंग कराई जाती है. नहीं, दे हैव टू लर्न अबाउट वेरियस आर्टिस्ट के बारे में बताया जाता है, वेरियस आर्ट फॉर्म्स के बारे में बताया जाता है. दैट मीन्स दे हैव टू लर्न डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड थ्योरीज. Therefore, we say that art is a systematic body of knowledge. Next is personalized application. That means every form of art has a personal touch involved. Every form of art has a personal touch involved. Personal touch means every artist, every person has a different artistic skill. They have a different way of doing a particular thing. They have their own style. Like for example, suppose in a classroom, I give the students a topic, maybe rainy season. मैंने क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को रेनी सीजन पे ड्रॉ करने को बोला. I told them that they have to draw one tree, clouds, rain droplets, a boy with an umbrella and a small hut. ये मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आपको एक ट्री बनाना है, क्लाउड्स बनाने हैं, रेन ड्रॉप्स बनानी है, एक बॉय बनाना है विद एन अम्ब्रेला एंड अ हट. अब आप मुझे ये बताओ, क्या जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं क्या सब एक ही वे में बना देंगे? नहीं. Although they will be drawing the same things which I have told them, but the drawings of each and every student will be different. Why? Because everyone has a different way of doing the work. Everyone has a different style.
This is what I am trying to say, that art has a personal touch involved. सबकी ड्राइंग डिफरेंट होगी, ऑल्दो जो बनाया है वो सब चीजें सेम है, बट द प्रेजेंटेशन, द स्टाइल ऑफ ड्राइंग, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट. दैट मीन्स there is personal touch involved in art. I hope this is clear. Now we will do the third characteristics. Art is based on practice and creativity. You must have heard this. More you practice, more refined you become. More you practice, finer you become. आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे बनते जाओगे. आई फील दिस इज वेरी क्लियर. एक आर्टिस्ट जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करता है, जितनी ज्यादा आर्ट की प्रैक्टिस करेगा, एक डांसर जितना ज्यादा डांस की प्रैक्टिस करेगा, एक सिंगर जितना रियाज करेगा, उतने ही अच्छा उसकी स्किल्स होंगी, उतना ही वो फाइन बनेगा, पॉलिश बनेगा. राइट? सो आर्ट इज बेस्ड ऑन practice. More you practice, finer you become. Next is creativity. Creativity is what? Innovation, doing something new. अब आर्ट ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ ना कुछ नया जरूर करना पड़ता है. एक आर्टिस्ट को भी नया करना पड़ता है, जो ड्रॉ कर रहा है उसे भी कुछ नया सोचना पड़ता है, डिफरेंट स्टाइल ऑफ ड्राइंग्स एंड पेंटिंग सोचना पड़ता है. जो डांस कर रहा है उसे भी डिफरेंट स्टाइल सोचना पड़ता है डांस का. सो उसे कुछ ना कुछ क्रिएटिव, कुछ ना कुछ डिफरेंट करना पड़ता है. राइट? सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्ट. नाउ वी विल सी वेदर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट इन मैनेजमेंट और नॉट. अगर मैनेजमेंट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो हम क्या बोलेंगे कि यस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट. ओके. First characteristic is management is a systematic body of knowledge. क्या management systematic body of knowledge है? हाँ है. Because management has its own theories, concepts and principles. जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो 1st to 8th चैप्टर है, जो आपके कोर्स के 1st to 8th चैप्टर है, वो सब मैनेजमेंट से रिलेटेड है. तो कुछ ना कुछ तो पढ़ोगे, कुछ ना कुछ कंसेप्ट पढ़ोगे, थ्योरीज पढ़ोगे, प्रिंसिपल्स पढ़ोगे. That means first characteristic is there in management. Now coming to the second characteristic, and we'll see whether the second characteristic is there in management or not. Personalized application. Personalized application मैंने क्या बताया? That every person has a different style of doing the work. Right? So in an organization, a particular situation will be handled by two managers in a different way. क्या दोनों मैनेजर एक ही सिचुएशन को क्या एक ही तरीके से हैंडल करेंगे? ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसा क्यों जरूरी नहीं है? बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सन स्टाइल ऑफ डूइंग द वर्क इज डिफरेंट. तो वो एक ही सिचुएशन को अपने ओन स्टाइल में हैंडल करेंगे. So that is personalized application. That means this characteristic is there in management. Coming to the third one, based on practice and creativity. Practice का क्या बताया था मैंने कि आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही अच्छे बनते जाओगे. तो जितना ज्यादा मैनेजर को एक्सपीरियंस होगा वो सिचुएशंस को और अच्छी तरह से हैंडल कर पाएगा. अब सपोज 2 मैनेजर्स हैं, एक अभी नया मैनेजर है जिसको सिर्फ 1-2 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, और एक मैनेजर है जिसे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ है. सो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि कौन सिचुएशन को ज्यादा अच्छे वे में हैंडल कर पाएगा. ऑब्वियसली कौन सा वाला जो 10 इयर्स का एक्सपीरियंस लेके बैठा है. सो मोर यू प्रैक्टिस, better you become, finer, polished you become. Creativity. हर मैनेजर को क्रिएटिव होना बहुत जरूरी है. They have to be innovative, right? Can a manager follow the same plan every time? No.
You have to change your plan according to the changing environment. तो मतलब कैसे चेंज कर पाओगे? अगर आप क्रिएटिव हो, अगर क्रिएटिव होगे तभी तो कुछ नया लेके आ पाओगे। तो मैनेजर को क्या, क्रिएटिव होना भी बहुत जरूरी है। So this characteristic is also there in management. So students, all the three characteristics are there in management. So we say that management is an art. I hope students you must have understood. We'll just revise it. Management is a systematized body of knowledge. Why? Because of it has its own theories, concepts and principles. मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ थ्योरीज, कंसेप्ट, प्रिंसिपल सब पढ़ोगे ही आप अपने कोर्स में. सो दैट मीन्स इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज. मैनेजमेंट में पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन भी होता है, एक पर्सनल टच इन्वॉल्व होता है. हर मैनेजर हर एक सिचुएशन को अपने स्टाइल से हैंडल करता है. जरूरी नहीं है कि दो मैनेजर एक ही स्टाइल से हैंडल कर रहे हैं. एवरीवन हैज अ डिफरेंट स्टाइल ऑफ डूइंग द वर्क. Third point is it is based on practice and creativity. मैनेजर जितना ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होगा, जितना ज्यादा वो प्रैक्टिस करता रहेगा काम करने की, सिचुएशंस हैंडल करने की, वो उतना ही फाइनल बनेगा. फाइनल मतलब और अच्छा बनता जाएगा. क्रिएटिविटी क्या होता है? डूइंग समथिंग न्यू. मैनेजर्स को हर बार सिचुएशंस हैंडल करने के लिए कुछ नया सोचना पड़ता है, कुछ नए प्लान्स बनाने पड़ते हैं जिससे वो अपने गोल अचीव कर लेते हैं. सो दीज ऑल द थ्री कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन मैनेजमेंट. सो वी से दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट. I hope students you must have understood. Thank you.